جی ہاں، پرانے شہر حیدرآباد میں یوم عاشورہ کے موقع پر تاریخی علم بی بی کا جلوس برآمد ہوا۔ جلوس علاوہ بی بی دبیر پورہ سے ہاتھی پر روانہ ہوا۔ جلوس کے آغاز پر گروہ شہدائے شبیر کی جانب سے سینہ زنی کی گئی۔ جلوس میں جملہ 24 ماتمی انجمنیں سینہ زنی کریں گی۔ جلوس علاوہ بی بی دبیر پورہ سے نکل کر براہ بنگلہ بینی، کمان شیخ فیض، یاقوت پورہ دروازہ، اعتبار چوک، کوٹلہ عالیجہ، چار مینار، گلزار حوض، پنجہ شاہ، منڈی میر عالم، مسجد الہی چادر گھاٹ کے قریب اختتام کو پہنچے گا۔ ہاتھی پر مجاور علاوہ بی بی سید علی الدین عارف اور علمبردار قمر حسن رضوی سوار ہیں۔ علم کو کمشنر پولیس حیدرآباد انجنی کمار خانوادہ نظام کی جانب سے ڈھٹی پیش کی جائے گی۔ اس کے علاوہ مختلف سیاسی جماعتوں کے لیڈر، وزراء اور عہدیدار بھی جلوس کے راستوں پر مختلف مقامات پر ڈھٹی پیش کریں گے۔ جلوس کے ہمراہ ایمبولینس گاڑیاں بھی ہیں۔ علم بی بی کا تاریخی جلوس شام 7 بجے مسجد الہی چادر گھاٹ کے قریب اختتام پذیر ہوگا۔ حیدرآباد صدیوں سے ہندو مسلم اتحاد کا گہوارہ رہا ہے۔ یوم عاشورہ کے موقع پر بھی تاریخی علم بی بی کے جلوس میں نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی عقیدت و احترام کے ساتھ شرکت کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھی انیس الرحمان نے جلوس میں شریک غیر مسلم بھائیوں سے خاص بات چیت کی اور ان کے تاثرات جانے۔ حیدرآباد کے سب سے تاریخی اور سب سے اہم سمجھے جانے والے بی بی کے علم میں موجود ہیں ہم۔ اس علم کی خاصیت یہ ہے، اس علاوے کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں پر بہت بڑی تعداد میں غیر مسلم زائرین بھی آتے ہیں۔ میرے ساتھ ایک صاحب ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ جو ہے کب سے آتے ہیں اور ان کو کس عقیدت کے تحت، کس جذبے کے تحت وہ یہاں آتے ہیں۔ سر آپ کا نام بتائیں پہلے۔ ناگبھوشنم صاحب، آپ بتائیں کہاں سے ہیں آپ؟ دبیر پورہ پیدائشی، دبیر پورہ 50 سال سے آتے ہیں، 50 سال سے پیدائشی پورا یہاں رہتے ہیں۔ اب میں ایم ڈی نگر میں پیدائشی یہاں کی ہے، یہی تھا 50 سال سے ہم بیکادہ کو آتے ہیں۔ آپ کو اس علاوے کے تعلق سے کیا معلوم ہے؟ آپ کیوں آتے ہیں یہاں پہ؟ کیا عقیدت ہے آپ کی؟ کیا جذبہ ہے؟ کیا بھکتی ہے؟ بھکتی بولتا ہم بچپن سے ہم زیادہ بولتا تھا، نیاز کرتے تھے، ہم گھر میں نیاز کرتے 5 جنوں کو بلا کر فاتحہ دیتے تھے۔ 50 سال سے آتے ہم رین بازار چمن سے رہتے تھے۔ وہ ہمارے امی 35 سال ایک منت مانگ لیے تھے، ان کو پورا ہو گیا۔ جب سے آتے رہتے، ٹٹی بنتے، پھول چڑھاتے، چوڑیاں چڑھاتے۔ آپ کا نام بولیے۔ میرا نام منوہر رانی ہے۔ ستران گارو، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ بیگم بازار۔ بیگم بازار۔ آپ کب سے آتے ہیں یہاں پر؟ کم سے کم ہمارے اماں بزرگ جب سے آتے۔ کیا جذبہ لے کے آتے ہیں آپ؟ کیا معلوم ہے آپ کو اس کے تعلق سے؟ اس کے بارے میں ہمارے اماں لوگوں کو معلوم، انہوں جب سے ہمارا لے کے آتے ہیں، انہوں گزر گئے، انہوں نے ان کا تمنا پہ ہم ہر سال یہاں کو آتے منت مانگتے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ کمرا یادو۔ کمرا صاحب بتائیں آپ کہاں سے ہیں؟ ہم سرو نگر سے ہیں سر۔ جی، تو یہاں پہ آپ کیوں آتے ہیں؟ یہاں پہ کیا ہمارے بڑوں سے آتے، ہم بھی وہ سے آ رہے سب درشن کر لینے کے لیے۔ میں بیگم بازار سے آیا۔ یہ ماتا کی جیسا آشیرواد ایسا رہتا ہے کہ ہر سکھی دکھی میں نہیں رہتے، ہر سکھ میں رہتا انسان۔ کرشنا صاحب آپ بتائیں آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں گولی گوڑا سے آیا ہوں۔ جی، تو یہاں پر کیا معلوم ہے آپ کو اس علم کے تعلق سے؟ کیا بتائیں ہم؟ یہ سال آنا بلائے میرے کو، فاطمہ ماتا بلائے، میں آ گیا، بس اتنا ہی ہے۔ اور اب بات کریں گے گنیش وسرجن کی۔ جی ہاں، گنیش وسرجن کے پیش نظر وزیر داخلہ محمد محمود علی نے تمام تر تیاریوں کی صورتحال کا جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ اس اجلاس میں وزارت داخلہ کے چیف سیکرٹری راجیو ترویدی کے علاوہ ڈی جی پی مہندر ریڈی، سٹی پولیس کمشنر انجنی کمار کے علاوہ مہیش بھاگوت، سجنار ایڈیشنل ڈی سی پیز نے اس اجلاس میں شرکت کی۔ وزیر داخلہ نے بہتر سے بہتر انتظامات کرنے کی یہاں عہدیداروں کو ہدایت جاری کی اور کہا کہ ریاست میں امن و امان کی برقراری ہمارا اہم مقصد ہے۔ MIM صدر اسدالدین اویسی نے کہا ہے کہ ملک میں موب لنچنگ یعنی ہجومی تشدد ختم نہیں ہوگا جب تک کہ ملزمین کو سیاسی آقاؤں سے مدد ملتی رہے گی۔
असदुद्दीन अवैसी ने हुकूमत से हुजूमी तशद्दुद पर कानून साजी की मांग की। उन्होंने तबरेज़ अंसारी मामले पर कहा कि अदालत कत्ल का मुकदमा चलाएगी। उसको नहीं मारते, रात भर नहीं पीटा जाता तो जिंदा रहता। उसको मारने की वजह से तबरेज़ की मौत हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ की लोकल कोर्ट जो ये केस देख रही है वो इस चार्जशीट का कॉग्निसेंस नहीं लेगी और 302 पर ही केस उस पर चलेगा। प्रोसिक्यूशन को हुकूमत से और पुलिस से इंडिपेंडेंट रखना बहुत ज़रूरी है। इसे एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन की ज़रूरत है। और सबसे अहम बात यह है कि बीजेपी जो इस बात को समझ रही है मगर अनजान बन रही है, आज इस मुल्क में ज़रूरत है एक मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून की, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्यों नहीं बनाती बीजेपी। राइट टू लाइफ हमारे संविधान में एक फंडामेंटल राइट है। पूरे देश में जहां कहीं भी बीजेपी सरकार है वहां मुसलमानों के लिए करबला बना हुआ है, करबला का मंजर बना हुआ है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है और जो कत्ल का मुकदमा उन पर लगना चाहिए उनको फंडामेंटल राइट मिल रहा है, उनके राइट्स हैं। और जो मजलूम हैं, जो मारे गए, उनके कोई हुकूक नहीं है, कोई राइट्स नहीं है। आपको याद दिलाना चाह रहा हूं कि मैंने हमेशा कहा कि मॉब लिंचिंग नहीं खत्म होगी। इसलिए नहीं खत्म होगी क्योंकि इनको मदद मिलती है इनके सियासी आखाओं से। मॉब लिंचिंग अगर खत्म उसी वक्त हो सकती है जब बीजेपी सरकार केंद्र की और जहां पर स्टेट की अगर एक स्ट्रांग मैसेज लेंगे, पोजीशन लेंगे, तभी खत्म होगी। क्योंकि आप तो उनकी मदद कर रहे हैं, आप कानून भी नहीं बनाते। ये कि 7 घंटे आप किसी को मारते हैं, पीटते हैं, 2 महीने उसकी हुई शादी होकर और उसके पति के मरने के बाद उसकी बीवी का मिसकैरेज हो जाता है और आज भी वो परेशान है, तो इंसाफ तो गया ना, इंसाफ तो खत्म हो रहा है। तो ये तो इंसानियत का मुद्दा है। इसको क्यों हम इलेक्शन की ऐनक लगा कर देखें? ये तो इंसानियत का मुद्दा है। इलेक्शन आएंगे चले जाएंगे, मगर एक इंसान की जान अगर चले जाएगी और जिस पर कत्ल का मुकदमा लगना चाहिए आप उन पर होमोसाइड का लगा रहे हैं, तो क्या मैसेज दे रहे हैं आप? और असदुद्दीन अवैसी ने कश्मीर में मुहर्रम के जुलूस निकालने न देने की भी मजम्मत की। उन्होंने एनएस के बयान की मजम्मत की और कहा कि हुकूमत कश्मीर मसले पर पाकिस्तान को जोड़ रही है। कश्मीर में अमन है तो इंटरनेट, दुकानें, तालीमी इदारे बंद क्यों हैं? में जो बंद हो रहा है, जो बंद किया जा रहा है, मुहर्रम का जुलूस भी नहीं निकाला जा रहा है, मैं इसको कंडेम करता हूं। और एनएसए के स्टेटमेंट को मैं कंडेम करता हूं कि एनएसए ने कहा कि वहां पर हम उस वक्त छूट देंगे जब पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आ जाएगा। हम मोदी सरकार से पूछना चाहते हैं कि पाकिस्तान का कश्मीर से क्या करना है? आप जोड़ रहे हैं कश्मीर को पाकिस्तान से। अरे उनके ऊपर उस कश्मीर में क्या फंडामेंटल राइट्स लागू नहीं होते? क्या राइट टू लाइफ नहीं है उन लोगों को? क्यों एनएसए उसको जोड़ रहे हैं पाकिस्तान के साथ? और पाकिस्तान के साथ जोड़ते रहेंगे आप। हम कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का टूट हिस्सा है और रहेगा, तो ये बयान देकर तो आप तो उनको तक़वियत दे रहे हैं। ये तो गलत बयान उन्होंने दिया। और फिर आप कह रहे हैं कि सब अमन है। अमन है तो फिर जुलूस क्यों नहीं निकलता? अगर अमन है तो इंटरनेट क्यों नहीं चलता? अगर अमन है तो फिर दुकानें क्यों नहीं खुलती? अगर अमन है तो स्कूल क्यों नहीं खुलता? अगर अमन है तो एक चीफ मिनिस्टर की बेटी को सुप्रीम कोर्ट जाकर इजाजत लेने की क्यों जरूरत पड़ी? अब तो यूएनएचसीआर में चला गया। यूएनएचसीआर के कल उन्होंने टिप्पणी कर दी। ये तो सरकार को जवाब देना है इसका। तो हम तो शुरू से कह रहे थे इसको, पार्लियामेंट में मैंने कहा, हमने इसीलिए अपोज किया था उसको। अब ये सरकार की जिम्मेदारी है। और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन अवैसी ने मोदी हुकूमत के दूसरी मियाद के 100 दिन मुकम्मल होने को भी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत के 100 दिन में कश्मीर बंद है, जीडीपी कम हो गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ठप पड़ गई है, जीएसटी कलेक्शन कम हो गया है। 35 दिन कश्मीर में कोई इंटरनेट नहीं, कोई स्कूल नहीं खुलता। 100 दिन में जीडीपी 5% हो गया। 100 दिन में अनएम्प्लॉयमेंट 6% के ऊपर हो गया। 100 दिन में जितने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के 10 लाख लोग बेरोजगार होने जा रहे हैं। 100 दिन में जितने गाड़ियां बिकती थीं वो पूरे 20%, 25% नीचे गिर चुकी हैं। 100 दिन में जीएसटी कलेक्शन गिरता गया, 1 लाख से नीचे गिर गया। तो कौन से 100 दिन की आप लोग तारीफ कर रहे हैं? हाँ, आपको अगर मोहब्बत है बीजेपी से, आप बाजा बजाइए उनका, हमको इतराज नहीं है, मगर हकीकत भी तो देखना पड़ेगा आपको।
और वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र में वंचित बहुजन अघाड़ी से इत्तेहाद न करने की भी तस्दीक कर डाली है और कहा है कि औरंगाबाद के एमपी इम्तियाज जलील ने पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया है। असेंबली इलेक्शन में इत्तेहाद और सीटों पर महाराष्ट्र करेगा। स्टेटमेंट दिया है वो पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है। ठीक है। हाँ, अब आप सुनिए, अब कितने सीट्स खड़ा करेंगे वो महाराष्ट्र की यूनिट डिसाइड करेगा, किससे और अलायंस होगा नहीं होगा वो डिसाइड करेंगे। हाँ, तो भाई महाराष्ट्र की यूनिट भी तो है ना भाई। जैसा आप लोग यहाँ पर हैं, अपना काम आप करते हैं, आपके बॉस दिल्ली में आपका काम करते हैं, तो आप वो अपना काम करेंगे। तेलंगाना की नई गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने अंदरूने 15 यौम तेलुगु जबान सीखने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि वो अंदरूने 2 हफ्ते तेलुगु जबान सीखकर तेलुगु अवाम से तेलुगु जबान में ही बात करेंगी। राजभवन के मुख्तलिफ शोबों के अहदेदारों के साथ उन्होंने खास बातचीत की और कहा कि वो रोजाना वॉकिंग का शौक रखती हैं, योगा भी उनकी जिंदगी का हिस्सा है। राजभवन की लाइब्रेरी का जायजा लेने के बाद उन्होंने खुशी का इजहार किया। गवर्नर सौंदरराजन ने तमाम अहदेदारों से अपील की कि वो अपनी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएं। इसके अलावा उन्होंने तेलंगाना की तमाम सियासी जमातों से रियासत की तरक्की के लिए ताउन करने की भी अपील की है। This government has ensured growth in IT sector by clocking rupees 1.10 lakh crore IT exports as against rupees 52,000 crore in the past. Development of Hyderabad as a global city with metro, law and order has set a new standards for the rest of the cities in the country. I wish to conclude by saying that the government has taken up the ardent task of reconstruction and regeneration of state economy in the same spirit of performing holy yagnas and homas. Today, Telangana state stood before the country as a proud and model state where the foundations for the construction of Bangaru Telangana. और वहीं हिमाचल प्रदेश के नए गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय से हैदराबाद में आला अहदेदारों ने मुलाकात की। हैदराबाद में दत्तात्रेय की क़यामगाह पहुंचकर हिमाचल राजभवन के आला अहदेदारों ने उनसे मुलाकात की और उनकी गवर्नर के तौर पर नामजदगी के दस्तावेजात हवाले कर दिए। बादशाह अरकान खानदान के साथ दत्तात्रेय हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना हो गए। वो कल हिमाचल प्रदेश के गवर्नर की जिम्मेदारी संभाल लेंगे। नागार्जुन सागर की सतह में फिर से इजाफा हो गया है। बालाई इलाकों से आ रहे सैलाबी पानी के सबब सागर की सतह फिर एक मरतबा खतरे के निशान को पार कर गई है, जिसके सबब सागर के अहदेदारों ने 8 गेटों को 5 फीट ऊंचाई तक खोल दिया है। अहदेदारों ने इस मौके पर बताया कि रोजाना 2,75,000 क्यूसेक पानी डैम में दाखिल हो रहा है। मजीद पानी दाखिल होने की सूरत में सागर के दीगर गेट्स को भी खोल दिया जाएगा। वज़ीर आला केसीआर ने असेंबली में माली साल 2019-20 का बजट पेश किया। मुकम्मल बजट 1,46,492 करोड़ का है। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में अक़लियती बजट में तकरीबन 500 करोड़ की कटौती की गई है। खास रिपोर्ट। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने माली साल 2019-20 का असेंबली में बजट पेश किया। जुमला बजट 1,46,452 करोड़ पर मुश्तमिल है। मुख्तलिफ स्कीमों के लिए 75,263 करोड़ रुपयों का तखमीना है, जबकि एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर का तखमीना 71,229 करोड़ का है। बजट में स्कॉलरशिप के लिए 3,257 करोड़ रुपए, जबकि कल्याण लक्ष्मी स्कीम के लिए 1,540 करोड़ रुपए, स्पेशल डेवलपमेंट फंड के लिए 10,000 करोड़ रुपए, सानवी तालीम के लिए 8,228 करोड़ रुपए, आला तालीम के लिए 1,691 करोड़ रुपए, महकमे बल्दी नज़्म नस्क के लिए 3,284 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। इसी तरह हाउसिंग के लिए 1,005 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। जारिया साल अखिलती बहबूद के लिए 1,367.14 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में बजट में तकरीबन 500 करोड़ रुपयों की कटौती की गई है। रियासत की कमजोर माशी सूरत हाल को देखते हुए हुकूमत ने न सिर्फ मजमूई बल्कि फलाही स्कीमात के बजट में भी कटौती की है। दायरतुल मारूफ के लिए 91.92 लाख रुपए मख्तस किए गए हैं, जबकि गुज़िश्ता साल 4 करोड़ 11 लाख रुपए मंजूर किए गए थे।
उर्दू एकेडमी की इमदाद के तौर पर 1,07,71,000 रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि ये रकम गुज़िश्ता साल 1,64,58,000 रुपए पर मुश्तमिल थी। अक़लियती तुलबा के लिए स्कॉलरशिप की रकम को 200 करोड़ से घटाकर 88 करोड़ रुपए कर दिया गया है। फीस की अदायगी के लिए गुज़िश्ता साल 248 करोड़ रुपए मख्तस किए गए थे। इस बार फीस की अदायगी की रकम में 5 करोड़ रुपयों की कटौती की गई है। बैंकों से मरबूत सब्सिडी स्कीम के लिए 28 करोड़ 71 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है, जबकि गुज़िश्ता साल ये रकम 121 करोड़ 66 लाख रुपए पर मुश्तमिल थी। उर्दू घर शादी खानों के लिए 8 करोड़ 52,99,000 की गुंजाइश रखी गई है, जबकि गुज़िश्ता साल ये बजट 32 करोड़ 91,69,000 पर मुश्तमिल था। वक्फ बोर्ड के तहत आइमा व मौज़नीन के लिए 55 करोड़ 14,99,000 मख्तस किए गए हैं, जबकि गुज़िश्ता साल इस स्कीम के लिए 65 करोड़ 83,38,000 मंजूर किए गए थे। सेंटर फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज के लिए 1 करोड़ 32,36,000 रुपए मख्तस किए गए हैं, जबकि ये बजट गुज़िश्ता साल 3 करोड़ 29,17,000 पर मुश्तमिल था। हज कमेटी के लिए 1 करोड़ 32,36,000 मख्तस किए गए हैं। गुज़िश्ता साल हज कमेटी का बजट 3 करोड़ 29,17,000 पर मुश्तमिल है। माइनॉरिटी स्टडी सर्कल के लिए 1 करोड़ 47 लाख रुपए मख्तस किए गए हैं, जबकि गुज़िश्ता साल ये बजट 6 करोड़ 58 लाख रुपए था। अक़लियती अक़ामती स्कूल सोसाइटी का बजट गुज़िश्ता साल 735 करोड़ था, जिसे घटाकर 470 करोड़ 75 लाख रुपए कर दिया गया है। इसी तरह अक़लियती बहबूद के तकरीबन तमाम इदारों और स्कीमात में काबिल लिहाज कमी कर दी गई है। महकमा अक़लियती बहबूद ने हुकूमत को 2,200 करोड़ की तजावीज़ पेश की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। में आशूर के मौके पर आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा मछलीपट्टनम में भी अज़दारी की गई। मातमी जुलूस बरामद किए गए। मुश्तरका आंध्र प्रदेश में सिर्फ हैदराबाद और मछलीपट्टनम में ही मातमी जुलूस निकाला जाता है। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त थे। एडिशनल एसपी महबूब बादशाह सिक्योरिटी पर रास्त निगरानी कर रहे थे। साबिक़ वज़रा के रविंद्र ने मुस्लिम भाइयों से मुलाकात करके इस मौके पर इजहार यगानगत किया। वहीं अदूनी शहर में भी हर साल की तरह इस साल भी यौम आशूरा के मौके पर ऊपर किले में बड़े पैमाने पर अलम को रिवायती तरीके से निकाला गया। अलम की ज़ियारत के लिए सैकड़ों की तादाद में तमाम मज़ाहिब के मानने वाले मौजूद रहे। बड़े आसार शरीफ के मुतवल्ली सैयद महबूब बादशाह ने बताया कि अदूनी शहर में गुज़िश्ता 400 साल से यौम आशूरा के मौके पर अलम निकाले जाते हैं। वहीं जिला करनूल के बंगानापल्ली में यौम आशूरा मनाया गया। अलम निकाले गए। मातमी जुलूस मुनक़िद किए गए। शुहदाए करबला को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर मुस्लिम और गैर मुस्लिम अफराद ने मुहर्रम के जुलूस में शिरकत की। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे। अत्यंत भक्ति श्रद्धలతో ప్రజలందరూ కూడా దర్శిస్తూ ఉన్నారు. మరి మొహమ్మద్ ప్రవక్త 72 మంది కార్యక్రమం జరుగుతుంది। और इस सब के बीच आंध्र प्रदेश के जिला करनूल के बी तांड्रापाड़ू देहात में मुहर्रम के जुलूस के दौरान एक नाखुशगवार वाक़या भी पेश आया। जुलूस का नज़ारा करने के लिए कई लोग अपने अपने घरों की छतों पर मौजूद थे कि इस दौरान एक छत पर गुंजाइश से ज्यादा लोगों की मौजूदगी थी, जिसकी वजह से छत मुनहदिम हो गई। इस हादसे में 20 अफराद शदीद जख्मी बताए जा रहे हैं। इनमें से 5 की हालत नाजुक बताई गई है। तमाम जख्मियों को करनूल सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। रुकन असेंबली करनूल हफीज खान ने दवाखाने पहुंचकर जख्मियों से मुलाकात की और बेहतर से बेहतर इलाज करने का डॉक्टर्स को मशवरा दिया। వాల్ కొలాప్స్ అయిపోయి కింద పడింది. దాదాపు 20-30 మంది రాత్రి హాస్పిటల్కి రావడం జరిగింది. వాళ్ళు అప్పుడే ఫోన్ చేస్తే నాకు డ్యూటీ డాక్టర్తో లేడీ డాక్టర్ మాట్లాడాను. చాలా మటుకు అవుట్ పేషెంట్ ఇంజరీస్ ఉండింటే పొద్దున్న 4-5 గంటల వరకు వాళ్ళకంతా ఇది చేసి చికిత్స చేసి షిఫ్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు మేజర్గా ఒక 5 మెంబర్స్ ఉన్నారు. న్యూరోసర్జరీలో 2 ఉన్నారు, క్యాజువాలిటీలో 1, ఆర్థోపెడిక్లో 2 ఉన్నారు. नेल्लूर के 12 शहीदा दरगाह में रोटी त्यौहार का आगाज हो चुका है। मुल्क भर से अकीदतमंद बड़ी तादाद में दरगाह पहुंचकर अपनी मन्नत पूरी होने के बाद नजराना पेश कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से जायरीन के लिए तमाम तर सहूलियात फराहम करवाई गई हैं।
اور وہیں کرنول میں آج گنیش وسرجن کا بھی انعقاد کیا گیا. پچھلے 9 دنوں سے کرنول میں گنیش تہوار جوش و خروش کے ساتھ جاری تھا. آج کرنول کے کیسی کنال میں وسرجن کیا گیا. وسرجن کے لیے پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے پختہ بندوبست تھے. وسرجن صبح 10 بجے رام بھٹ مندر سے شروع ہوا اور دیر رات تک جاری رہے گا. کرنول میں تقریباً 2000 سے زائد گنیش بٹھائے گئے تھے. گنیش کے سبب شہر کی اہم سڑکوں کا ٹریفک کا رخ تبدیل کر دیا گیا تھا. واضح ہے کہ آج کرنول میں گنیش وسرجن کے ساتھ ساتھ محرم کے جلوس بھی نکالے گئے اور اسی لیے سیکیورٹی کے پختہ بندوبست کیے گئے تھے. آندھرا پردیش میں کرشنا ندی کی سطح میں اضافہ ہو گیا ہے. حکام نے پرکاشم بیرج سے فاضل پانی چھوڑ دیا ہے. نشیبی علاقوں سے عوام کو ہٹا دیا گیا ہے. متاثرین کو کیمپ میں منتقل کر دیا گیا ہے. ریاستی وزیر پی سبھاش نے اس موقع پر کہا کہ حکومت کی حالات پر کڑی نظر ہے. రెండోసారి కూడా కొంచెం వరదలు వస్తూ ఉన్నాయి. ఇది ఆందోళన కలిగించే రీతిలో లేదు, కానీ దేవీపట్నం లేదా పోలవరం ఆ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి లంక గ్రామాలందరికీ కూడా మరి కాస్త ముంపునకు గురైన విషయం వాస్తవమే. کرنول کے عثمانیہ کالج کے 2 اساتذہ کو اسٹیٹ بیسٹ ٹیچر ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا ہے. عثمانیہ کالج انتظامیہ کی جانب سے ایوارڈ یافتہ اساتذہ کو تہنیت پیش کی گئی. اس موقع پر کالج کرسپونڈنٹ عزرا جاوید نے بتایا کہ مسلم اقلیتوں کو تعلیمی میدان میں آگے بڑھانے پر حکومت کی جانب سے یہ ایوارڈ دیے گئے ہیں. ایوارڈ حاصل ہونا فخر کی بات ہے. اس موقع پر ایوارڈ حاصل کرنے والے اساتذہ نے کہا کہ اس ایوارڈ سے ان کی ذمہ داری مزید بڑھ گئی ہے. کالج کو اسٹیٹ گورنمنٹ نے 2 ایوارڈز سے نوازا ہے. بیسٹ ٹیچر ایوارڈ ڈاکٹر تاج الدین کو میتھس ڈپارٹمنٹ سے اور ڈاکٹر منڈی انور حسین کو تیلگو ڈپارٹمنٹ سے نوازا ہے. کالج کے لیے اور مینجمنٹ کے لیے یہ بے حد فخر کی بات ہے. ہم لوگ مائنورٹی ایجوکیشن کو آگے لے کے جا رہے ہیں. ہم وہ محنت جاری رکھیں گے اور آگے بھی جو بھی ٹیچرز اور مینجمنٹ اور اس انسٹیٹیوشن سے بن پڑے گا وہ اسٹوڈنٹس کے لیے کریں گے. خوشی کی بات ہے اور ہماری ذمہ داری ابھی بڑھ گئی ہے. ابھی ہمیں ریسپانسبلٹی سے ہمیں ورک مائنورٹی انسٹیٹیوشن میں ہمیں کام کرتے ہیں. ابھی نیلور سے خبر ہے جہاں ایک بھیانک سڑک حادثہ پیش آیا. ایک تیز رفتار 2 ویلر گاڑی اپنا بیلنس کھو کر برج پر سے ہی نیچے جا گری. اس حادثے میں 3 نوجوانوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی. ایک شدید زخمی ہوا. مقامی لوگوں نے زخمی نوجوان کو قریبی اسپتال میں بھرتی کروایا. پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے تفتیش شروع کر دی ہے. آج ورلڈ سوسائڈ پریونشن ڈے ہے. سماج میں خودکشی کے واقعات میں لگاتار اضافہ ہوتا جا رہا ہے جو کہ تشویشناک ہے. حالات کا مقابلہ کرنے کے بجائے محبت میں ناکامی، والدین کی ڈانٹ یا پھر چھوٹے موٹے مسائل سے پریشان ہو کر کئی لوگ خودکشی کا آسان راستہ چنتے ہیں. اس طرح کی خودکشیوں کو روکنے کے لیے سماج میں شعور بیدار کرنا وقت کی اہم ضرورت بن گیا ہے. ورلڈ سوسائڈ پریونشن ڈے کے موقع پر وجے واڑہ میں شعور بیداری ریلی نکالی گئی. ماہرین نفسیات نے لوگوں کو حالات کا بہادری سے مقابلہ کرنے اور خودکشی کا راستہ ترک کرنے کی اپیل کی ہے. واضح ہے کہ خودکشیوں کے واقعات میں آندھرا پردیش ملک بھر میں دوسرے مقام پر ہے.